Good morning. In last video, we have discussed the poem introduction about poet, about this particular text, about the condition in which Mark Antony has to prepare his speech to deliver in front of Roman people on the occasion of a funeral pride of Julius Caesar. We have seen that in last video. Mark Antony has to turn the tide, tide of opinion of Roman people against the Brutus. So he has to speak, he has to put forward each and every word very cleverly, because the atmosphere that has been created by Brutus and his companion is not favorable to Mark Antony to deliver his hate speech. Though he is very we can say grieved, he is very unhappy, he is very sad because of the death of his beloved friend Julius Caesar, but he cannot express his sadness, his anger directly in front of Roman people, because Roman people have been very well convinced by Brutus how he is the benevolent, how he is the lovable person, how he is the noble person, honorable person by murdering the Julius Caesar. We have discussed all this matter in last videos, and we have also discussed the initial lines of this particular poem, how he start his speech by addressing friends, Romans and countrymen. Lend me your ears, I come to bury Caesar, not to praise him. This is the word that shows that he has to prepare his speech very knowingly, very consciously. He has to develop the hatred against the Brutus step by step by giving people we can say the proof of the benevolent nature of Julius Caesar. So we have discussed this line in last video. Then he says, but Brutus say he was ambitious. He was my friend, faithful and just to me. Initial lines, he says that I am here to bury Caesar, not to praise him. He starts his speech. He says that he means Julius Caesar. Mark Antony is saying, he was my friend, faithful and just to me. Julius Caesar was my friend, my faithful, just to me. He was very क्या बोलते उसको, प्रामाणिक, वेरी लॉयल. वो मेरे साथ कभी उन्होंने चिट नहीं किया. वो मेरा फ्रेंड था, मेरा बिलव्ड था, एकदम फेथफुल था. फिर भी ब्रूटस से ही वाज एम्बिशियस. मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि सीजर वाज एम्बिशियस पर्सन इन हिज लाइफ, बिकॉज ही ऑलवेज ट्राई टू केयर अबाउट अदर. In his life, he always tried to care about others. He always tried to care about the Roman people. He always tried to take care of his companion like me. In his behavior, I never saw that ambition. In indirect way, he has to say that. And Brutus is an honorable man. And Brutus say he was ambitious man, and we cannot ignore, we cannot deny that fact, because we cannot raise any question against the Brutus, because Brutus is honorable man. He had brought many captives home to Rome, whose ransom did the general coffer fill. He hath का मतलब होता है has. He hath brought
ब्रिंग का पास्ट टेंस, इधर थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रॉट। ही हैथ ब्रॉट मेनी कैप्टिव्स। कैप्टिव्स का मतलब होता है युद्ध कैदी, उसको बोलते हैं। युद्ध में जब युद्ध में हम जीतते हैं, युद्ध हम एक आधा युद्ध हम जीतते हैं, तो युद्ध में जो पकड़े जाने वाले जो लोग हैं सोल्जर अगेंस्ट कंट्री के, तो उनको कैप्टिव बोलते हैं, युद्ध कैदी बोलते हैं उनको। ही हैथ ब्रॉट मेनी कैप्टिव होम टू रोम। जब उन्होंने वो कैप्टिव अपने रोम में लाए युद्ध कैदी को, हुज रैंसम, रैंसम का मतलब होता है खंडनी। अगर वो कैप्टिव को छुड़ाना है तो बहुत बड़ा पैसा वो जो दूसरी गवर्नमेंट है या दूसरा किंग है उसको देना पड़ेगा अपने युद्ध कैदी छुड़ाने के लिए। दैट रैंसम डीड जनरल कॉफर फील। जनरल कॉफर का मतलब होता है राजकोष, जनरल कोष जो उसको बोलते हैं, क्या, ट्रेजरी, जनरल ट्रेजरी। जो एक आधी राज्य की ट्रेजरी रहते हैं, वहाँ पे हम, जैसा हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो क्या है, ट्रेजरी है हमारी। वहाँ पे जो वो किसी का, यानी कि ऐसा इंडिविजुअल किसी का वो पैसा नहीं है, वो किसी का है, सब देश का, यानी कि सब कॉमन पीपल का, सब देश के हर नागरिक का पैसा है, वो उसके ऊपर सबका अधिकार रहता है। उसको जनरल कॉफर, जनरल ट्रेजरी बोलते हैं। तो जो जूलियस सीजर, इसका कहने का मतलब ये है कि इफ़ ही वाज एम्बिशियस ही could have filled his own coffer, not the public coffer or general coffer। अगर वो एम्बिशियस होता सीजर, क्योंकि बहुत बड़े जितने भी वार, जितने भी जीते हैं, तो वो जूलियस सीजर ने जीते, तो वो जो कैप्टिव को छुड़ाने के लिए जो रैंसम मिली, जो खंडनी मिली थी वो दूसरे देश से, दूसरे किंग से, उससे वो खुद का घर भर सकता था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि जनरल कॉफर जो सबकी है उसमें उन्होंने पैसा डाला, उसमें उन्होंने वो पूरी खंडनी डाली। तो इसका मतलब ये है कि सीजर कभी भी अपने जीवन में एम्बिशियस नहीं था। वो कभी भी अपने जीवन में खुद के बारे में नहीं सोचता था। वो किसके बारे में सोचता था? पूरे रोम के बारे में सोचता था। डिड दिस इन सीजर सिम एम्बिशियस? सिम मतलब दिखना। ये जो बात है, ये जो क्वालिटीज़ है, सही में आपको बताती है कि सीजर एम्बिशियस था। अगर वो एम्बिशियस होता, इनडायरेक्टली ऐसा बोलना है मार्क एंटोनी को, तो जो भी रैंसम मिली सीजर को, वो रैंसम से वो अपना खुद का घर भरता था, खुद के घर में वो सब रैंसम रखता था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया? जनरल कॉफर फिल की, जनरल कॉफर भरा। जनरल मीन्स की सब पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसमें उन्होंने पैसा डाला। उसने घर, अपना घर नहीं भरा। इससे यह साबित होता है कि ही वॉज नॉट सो एम्बिशियस। इसकी एक जो कृति है वो आपको एम्बिशियस दिखती है? डिड दिस इन सीजर सिम एम्बिशियस? व्हेन दैट द पुअर हैव क्राइड, जब जब हमारे देश के, रोम के जब जब जो गरीब लोग हैं, जब जब वो रोए हैं, सीजर हैथ वेप्ट। विप का पास्ट टेंस है वेप्ट, WEAP, विप का पास्ट टेंस वेप्ट। वेप्ट में विप का मतलब क्या होता है? रोना, क्राई करना। व्हेन दैट द पुअर हैव क्राइड, सीजर हैथ वेप्ट। जब जब अपने रोम का, जब जब गरीब को दुख हुआ है, जब जब वो रोया है, तब तब हमने सीजर को भी रोते हुए देखा है। एम्बिशन शुड बी मेड ऑफ स्टर्नर टफ। अगर वो एम्बिशियस होता, अगर उसकी हुकुमशाह बनने की चाहत होती, तो वो कभी नहीं रोता था। दैट एम्बिशन शुड बी मेड ऑफ स्टर्नर स्टफ। एम्बिशियस आदमी, हुकुमशाह आदमी कैसा रहता है? टफ रहता है, वो स्टर्न रहता है। उसको गरीब के फिल्म के बारे में कोई लेना नहीं रहता। उसके आंखों में कभी आंसू नहीं आते। एट ब्रूटस से ही वाज एम्बिशियस। फिर भी ब्रूटस कहते हैं कि वो क्या है? एम्बिशियस है। एंड वी कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट दैट इफ ब्रूटस इज सेइंग दैट मे बी ट्रू, बिकॉज ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। ब्रूटस कौन है? ऑनरेबल पर्सन है, बहुत ही क्या बोलते हैं, ऑनरेबल है वो। You all did see that on the लुपरकल। लुपरकल ये रोम में फेस्टिवल रहता है। जैसा हमारे इधर दिवाली रहती है, ईद रहती है, वैसा ही वो उनका फेस्टिवल रहता है। एट ब्रूटस से ही वॉज एम्बिशियस, द ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। यू ऑल डिड सी दैट ऑन द लुपरकल आई थ्राइस, थ्राइस का मतलब 3 बार, आई थ्राइस प्रेजेंटेड हिम, प्रेजेंटेड हिम उसको देना, क्या देना? प्रेजेंटेड हिम अ किंगली क्राउन। किंगली क्राउन, जब आपने पहले सोचा होगा, जब रोम का जूलियस सीजर ये ड्रामा लिखा गया, तब ऐसे क्या थे,
ट्राइब्स थे, यानी कि अब से टुकड़े टुकड़े में जाके लड़ाया करो, बाद में वो अपना एकाधा प्रदेश जीत तो उसके बाद में उसको अपना जनरल काफिर भरो, बड़े बड़े कैसल बनाओ, ये सब चलता था। उस टाइम में जब रोम का जनरल ये है फेस्टिवल है, उसमें खुद मार्क एंटोनी ने वो किंगली क्राउन कि किंग कौन बनेगा, तो किंग बनने की जो ऑफ़र है जूलियस सीजर को मैंने 3 बार दी है, लेकिन विच ही डिड थ्राइस रिफ्यूज़, तीनों बार उसने क्या किया है, रिफ्यूज़ किया, उसने डिनाई किया, उसने उसको नकारा है। वाज दिस एम्बिशन, ये आपको एम्बिशन लगती है? मैंने 3 बार उसको किंगली क्राउन ऑफ़र किया, उसको 3 बार किंग बनने की हमने ऑफ़र की, लेकिन वो कभी भी उसने स्वीकार नहीं किया। ये इसके चार्ट में, ये इसके एक्ट में आपको एम्बिशन दिखता है? 8 तरी ही 8 को क्या बोलते हैं हिंदी में? तब भी 8 ब्रूटस से ही वाज एम्बिशियस, तब भी ब्रूटस कहते हैं कि ही वाज एम्बिशियस पर्सन एंड श्योर ही एज ऑनरेबल मैन। यानी हम डिनाइड तो नहीं कर सकते क्योंकि ब्रूटस बोल रहे हैं, यानी ब्रूटस तो क्या है, ऑनरेबल मैन। आपने देखा होगा कि अभी तक 3 बार आया है कि ब्रूटस वाज एन ऑनरेबल मैन। अगर हम एक आधे आदमी को बार बार कहते कि ये तो बहुत, वो तो उसकी गलती ही नहीं हो सकती, वो तो बहुत शाना है, और थोड़ी बार बोलते कि ये तो गलती ही नहीं हो सकती, बहुत बड़ा शाना है, इसका मतलब क्या है, वी हैव डाउट अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन। एंड जो अभी वो ये दे रहा है, प्रूफ दे रहा है कि कैसे जूलियस सीजर ने अपने जीवन में कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा। उसने जो भी सोचा है वो किसके बारे में सोचा है, सिर्फ रोम के लोगों के बारे में सोचा है। तो ये दर्शाता है वो कभी भी, जूलियस सीजर अपने लाइफ में कभी भी एम्बिशियस नहीं था, लेकिन वो आदमी के बारे में ब्रूटस क्या कहता है, सीजर वाज एम्बिशियस पर्सन। तो ऐसा बोलने वाला पर्सन सही मायने में ऑनरेबल हो सकता है क्या? इस प्रकार की एक क्वेश्चंस सब रोम के पीपल के मन में तैयार हो गया। आई स्पीक नॉट टू डिसअप्रूव, डिसअप्रूव का मतलब होता है गलत ठहराना। आई स्पीक नॉट टू डिसअप्रूव व्हाट ब्रूटस स्पोक, मेरे पहले ब्रूटस ने जो कुछ भी आपको बताया है कि किस तरह के सीजर एम्बिशियस था, किस तरीके से सीजर को मारना बहुत ही अनिवार्य था, ये आपको किसने बताया? ब्रूटस ने बताया। आई एम नॉट हियर टू डिसअप्रूव दैट होल फैक्ट दैट हैव बीन सेड बाय ब्रूटस, बट हेयर आई एम टू स्पीक व्हाट आई डू नो। मुझे यहाँ पे ब्रूटस ने जो कुछ भी कहा है उसको डिसअप्रूव करना, उसको नकारना, इसके लिए मैं यहाँ पे नहीं हूँ। मैं यहाँ पे किस लिए हूँ? आई एम हियर टू स्पीक व्हाट आई डू नो, मुझे जो कुछ भी सीजर के बारे में पता है वो मैं यहाँ पे बताने के लिए खड़ा हूँ। यू ऑल डिड लव हिम वंस, आप लोगों को पता है कि सीजर आपसे प्यार करते थे, पूरे रोम ने भी सीजर को बहुत प्यार किया है। वंस, जब टाइम था आप लोग उसके पीछे दीवाने थे, उसको बहुत प्यार करते थे। नॉट विदाउट काज, उस वक्त आपके पास कोई कारण नहीं था कि व्हाई शुड आई लव जूलियस सीजर, बिकॉज जूलियस सीजर था ही वैसा, क्योंकि वो सबकी चिंता करता था, सबके लिए वो लड़ता था, सबके लिए वो सब करता था, इसलिए सब लोग ऑटोमेटिकली उससे प्यार करते थे विदाउट एनी रीज़न। व्हाट कॉज विदहोल्ड यू देन टू माउर्न फॉर हिम, माउर्न का अर्थ क्या होता है? शोक व्यक्त करना, उसके पीछे रोना, अपना शोक व्यक्त करना। जैसे एकाध का बिलव्ड पर्सन अगर कुछ डेट हो जाता है तो हम कैसे माउर्न करते, उसके पीछे रोते हैं। तो एक दिन ऐसा था कि एक काल ऐसा था कि उस वक्त आप सब उसके ऊपर अपनी जान छिड़कते थे, उसके ऊपर आप प्यार करते थे। तो व्हाट कॉज विल होल्ड यू, विल होल्ड का अर्थ क्या आता है? पकड़ के रखना। तो अभी कौन सा कारण है जिसने आपको पकड़ के रखा है कि तुम उसके मौत पे रो भी नहीं रहे हो? ओ जजमेंट, ओ जजमेंट का मतलब क्या होता है? ओ गॉड, ओ न्यायकर्ता, ओ जजमेंट दाउ आर्ट फ्लेड टू ब्रूटिश बिस्ट। दाउ आर्ट का मतलब होता है RARE, दाउ का मतलब होता है यू, THOE, आर के एक वर्ड है। दाउ का मतलब होता है यू, YOU। दाउ आर्ट फ्लेड, फ्लेड का मतलब भाग जाना। दाउ फ्लेड का मतलब क्या होता है? भाग जाना। फ्ली, FLEE का सेकंड फॉर्म है एंड थर्ड फॉर्म फ्लेड, भाग जाना। दाउ आर्ट फ्लेड टू ब्रूटिश, ब्रूटिश का अर्थ होता है बहुत ही भयंकर क्रूर। बिस्ट का मतलब होता है राक्षस, यानी कि वो क्या बोलते हैं उसको, बहुत क्रूर प्राणी वगैरह।
जो किसकी ये नहीं करता, तमा नहीं रखते और किसको भी मार डालते हैं। ओ जजमेन, न्याय देवता, thou art fled to brutish beast and men have lost their reason। एंड जो न्याय है ये, इसका कहना यह है कि इतना आदमी, ये जूलियस सीजर इतना अच्छा आदमी था कि एक टाइम था उस वक्त सभी रोम उससे प्यार करते थे, सभी लोग उसके लिए अपनी जान छिड़कते थे। और आज क्या हो गया कि कोई भी उसके रोने पे रो नहीं रहा, उसके मरने पे रो नहीं रहा। ओ जजमेन, ए न्याय देवता, कहाँ पे गए हो तुम, कहाँ पे भागे हो तुम, कि तू पूरा अभी न्याय क्या पूरा, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, न्याय पूरी तरफ से झुक गया है क्या? जो ब्रूटिश बिस्ट है, जो एक क्रूर नेता है जैसे ब्रूटस जैसे, उनके पीछे दब गया है क्या, उनके पीछे उसका झुकाव है क्या? एंड मेन हैव लॉस्ट देयर रीजन, यानी अपने जो पूरे रोम के पीपल है उनको जो तारतम्य, यानी क्या बोलते हैं उसको, रीज़न, एखादी अगर चीज़ होती है तो ये क्यों हुई, उसके पीछे का कारण क्या है, वो एखादी आदमी सही है या गलत है, ये सब सोचने वाली जो एबिलिटी रहती है उसको रीज़न बोलते हैं हम, कार्य कारण भाव बोलते हैं उसको। वो कहा गया लोगों का, वो समझदारीपना लोगों की कहा गई कि कोई भी सीजर के ऊपर, सीजर के मरने के ऊपर वो नहीं रहा। ऐसे आदमी, जो आदमी ने कभी भी अपना नहीं चाहा, जो भी चाहा रोम के पीपल के लिए चाहा। जब गरीब आदमी रोए, गरीब आदमी को तकलीफ़ हुई तो सीजर खुद रोया है, सीजर ने गरीब आदमी के लिए बहुत इतना किया है। फिर व्हाट इज़ कॉज देयर दैट विद होल्ड यू टू माउंट द डेथ ऑफ जूलियस सीजर। बियर विथ मी, बियर विथ मतलब, बियर का मतलब होता है सहन करना, यहाँ पे बियर का मतलब मेरे साथ आना, मेरे साथ आना। बियर विथ मी, माई हर्ट इज़ इन द कॉफिन देयर विथ सीजर, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। आप लोग क्या हो गए, रोम के लोग डम हो गए। ब्रूटस ने आपको क्या किया है, भ्रमित किया है, भ्रमित किया है आपको, इसलिए आपको सीजर में कुछ अच्छाई दिख नहीं रही। लेकिन मैं, माई हर्ट इज़ इन कॉफिन देयर विथ सीजर, लेकिन मेरा जो भी हृदय है किसके साथ है, वो सीजर के साथ है, क्योंकि मैंने नज़दीक से देखा है कि सीजर कितना अच्छा आदमी था। एंड आई मस्ट पॉज टिल इट कम बैक टू मी, एंड आई मस्ट पॉज, जब तक सीजर को न्याय नहीं मिलता तब तक मेरा हर्ट, मेरा हृदय सीजर के पास ही रहेगा। जब तक उनको न्याय नहीं मिलता, जब तक मुझे लगता नहीं कि सीजर के साथ अच्छा होना चाहिए, तब तक मैं वहीं पे हूँ। एक क्या इमोशनल अपील है लोगों को कि आपको सीजर का जो है डेथ हुई है, सीजर का मर्डर हुआ है, उसको माउन करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। और ब्रूटस ने जो कुछ भी किया है वो गलत किया है, उसके बारे में आपने सोचना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ our poem Julius Caesar. It is completed now. I hope you must have understood this particular poem. I will create Google Classroom for you, and I will send the link of the Google Classroom on our WhatsApp group, and you have to join that Google Classroom. On that classroom I will post some questions regarding this particular poem. You have to solve and post it on Google Classroom in assignment section. You will find out that assignment in classwork. Okay then, thank you.